Dear students, I am going to tell you about the sources of stem cells for regenerative medicine. This is the first lecture of this kind. Now, today I am going to tell you about the adult stem cells from umbilical cord blood. What is umbilical cord? Umbilical cord is a narrow tube between baby and placenta. Placenta is attached to baby via short umbilical cord. So it contains blood supplied from mother, and later blood comes here from fetus also. So two types of circulatory systems work there. One is from fetus and other from the mother's placenta. You can see here the structure. This is the umbilical arteries, and this is actually human placenta. It is showing both fetal components क्या है, amnion and chorion. This is amnion जो fetal component हो गया, and chorion is also fetal component, and the maternal one decidua. The chorionic villi emerge from chorion and allow exchange from maternal to fetal blood. So this is the source also, and I will show the sources from where I have taken these figures. First of all, we see this here, umbilical arteries come. This is umbilical vein. You have already seen the amnion and chorion, and then the trophoblast, which is present in decidua, and this is myometrium. Now another view of this. This is maternal decidua, then chorion. This is chorion. Maternal decidua is after this. Here we find trophoblasts. This is the basement membrane of amnion, and these are the various layers: compact layer, fibroblast, intermediate spongy layer, reticular layer, basement membrane. And you can see the extracellular matrix composition also. Mostly they are made up of collagen type 1, 3, 5, 4, and fibronectin. This is again collagen and laminin, fibronectin. This is proteoglycan along with collagen. This is laminin, fibronectin, nidogen, collagen types again, and proteoglycan, collagen type 4, and fibronectin, laminin. So this is the makeup of amnion. Uh, Here the basement membrane, and then the amniotic fluid is found this side, and obviously here fetus is present. So this is the structure, and whatever we are talking about the blood will be same in placenta and umbilical cord, because both are present one after another. Now about stem cells present in this blood. This is useful source of adult stem cells. Why? Because it is better in terms of proliferation, easily and better dividing cells, and plasticity from other adult cells. Plasticity that which means कि ये differentiate होते हैं different variety of cells में, easily differentiate हो सकते हैं, इसलिए ये दूसरे adult cells से better हैं. These permit to overcome ethical safety concerns inherent in embryonic stem cells. Embryonic stem cells को हमें embryo लेके वहाँ से आइसोलेट करना पड़ता है, जबकि ये जो प्लेसेंटा है आफ्टर बर्थ it is thrown, actually it is
waste product after childbirth. So there's no ethical issue concerning uh, this part of the uh, organ, and these have immunosuppressive properties. That is, they have capacity to suppress in vivo inflammatory responses. सो एक तो बहुत ही खास प्रॉपर्टी ये है, दूसरी एथिकल इश्यूज नहीं है, उनको आराम से लिया जा सकता है, कोई इन्वेसिव मेथड यूज नहीं करना पड़ता है, और दीज कैन बी कलेक्टेड इजली। एंड कॉर्ड ब्लड, अब उसका ब्लड कहाँ से मिलेगा? एक्चुअली आफ्टर चाइल्ड बर्थ cord blood remains in the placenta in the attached umbilical cord after childbirth. मीडियम साइज ऑफ ब्लड कलेक्शन, यहाँ से कितना ब्लड मिल जाता है? 60 ml तक मिल जाता है, विच इज 2 ounces, and it contains total nucleated cells in such a great number, that is 470 million cells, and out of them stem cells containing markers, cells containing stem cell markers are 1.8 million, and these stem cells are autologous for the baby, means कि baby का ही blood है तो उसके लिए वो अपना है, और later on if it is required by the baby to treat certain disease, it can be easily used. So actually we will see later that cord blood can be stored in blood banks, cord blood banks, for later use in the baby's life. Along with the baby, it can be taken for treatment for the siblings, उसके भाई बहनों के लिए use हो सकता है, parents और grandparents for as a allogenic treatment. एलोजेनिक ट्रीटमेंट के लिए पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और सिबलिंग्स में भी इनको यूज़ किया जा सकता है। सेफ है, रिलेटिवली सेफ है। क्यों है ये हम आगे चल के देखते हैं, क्या खास बातें हैं इसमें जिसकी वजह से ये सेफ हैं और एलोजेनिक ट्रीटमेंट में भी यूज़ हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप ऑफ स्टेम सेल्स, इसमें स्टेम सेल मिले थे, ये देखा हमने कि मिलते हैं। अब इनमें लेकिन वेराइटीज़ होती हैं। हेमाटोपोइटिक, जो कि रेड ब्लड सेल्स बनाते, ब्लड सेल्स बनाने वाले स्टेम सेल्स मिलते हैं। एई माने प्लेसेंटल एमनियोटिक एपिथेलियल सेल्स मिलते हैं। कोरियोनिक मेसेंकाइमल सेल्स मिलते हैं, और अगेन दिस इज एमनियोटिक मेसोकाइमल सेल्स मिलते हैं। तो और आप ये देख सकते हैं, ये तो ब्लड सेल्स में ही चेंज होगा, जबकि एई जो है वो डिफरेंशिएशन पोटेंशियल रखता है मेसेंकाइमा बनाने का। हेमाटोपोइटिक, हेपेटिक सेल्स, कार्डियक, पैनक्रियाटिक एंड न्यूरल सेल्स, ये वाला इस वैरायटी का सेल एडिपोजेनिक है, मतलब फैट सेल्स बना सकता है। कॉन्ड्रोजेनिक है, ऑस्टियो बोन बना सकता है, स्केलेटल मसल्स, एंड न्यूरोजेनिक नर्व सेल्स के लिए डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। जबकि ये फाइनली ये जो वेराइटी इसमें प्रेजेंट है वो एडिपोज, कॉन्ड्रोजेनिक, ऑस्टियोजेनिक, स्केलेटल, मायोजेनिक, एंजियोजेनिक, नई वेन्स बनाने के काम आ सकता है। न्यूरोजेनिक है, पैंक्रियास बनाने के काम में आता है, और मायोजेनिक है। तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, अगर हम इतने मिलियन ब्लड सेल्स हमें कहीं से मिल जाते हैं जो कि स्टेम सेल की तरह काम करते हैं, उनमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उनका कैरेक्टराइजेशन करने के लिए ये मार्कर्स उनमें पाए जाते हैं, जो कि जिनको चेक करके हम इनको आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। Now today we'll be talking about AE cells, which are placental amniotic epithelial cells. स्टेम सेल्स हैं एक्चुअली ये। अगर कुछ कंपैरिजन देखें तो एम्ब्रियोनिक सेल्स को फर्दर एक बार हम प्रोक्योर कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं एम्ब्रियो से,
तो they need feeder layer in culture. But these cells don't need feeder layer to preserve their marker expression. तो feeder layer present रहेगी तब ये markers को maintain कर पाएंगे, उनको express कर पाएंगे, जबकि ये without feeder layer काम कर लेते हैं. अदर स्टेम सेल्स जो हैं embryonic plus others have common risk of teratoma development on transplantation. अब बेसिकली स्टेम सेल्स को डिफ्रेंसिएशन करने के लिए पहली बात तो कैपेसिटी है जो कि एक्सपेरिमेंटली चेक कर ली जाती है. अदरवाइज अल्टीमेटली इसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा कहीं पे नए ऑर्गन में, तो वहाँ पे टेराटोमा फॉर्मेशन हो जाता है दूसरे स्टेम सेल से. यहाँ पे क्या है, इसमें दे डोंट हैव टीलोमेरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दिस इज एंजाइम, और दे शो स्टेबल कैरियोटाइप एंड डोंट डेवलप विथ ट्यूमर. यहाँ पे रिस्क है कि चेंजेस हो सकते हैं, ट्यूमर बन सकता है, जबकि यहाँ पे ट्यूमर बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती क्योंकि एंजाइम ही नहीं प्रेजेंट है. दे हैव लेसर डैमेज क्योंकि बेबी से मिल रहे हैं तो अभी बिल्कुल नए हैं, वहाँ पे डीएनए का डैमेज कम है, न्यूनेटल ओरिजिन के हैं. एससीज डोंट एक्सप्रेस HLA1N. जो इम्यूनोलॉजी के टर्म्स में बात करें तो उनमें एंटीजन का जो एक्सप्रेशन होता है, अगर हर सेल में हमारे एंटीजन एक्सप्रेस्ड होते हैं कुछ जो कि हमारे सेल्स होते हैं, तो इसमें सेल्फ नॉट सेल्फ वाला डिस्टिंक्शन नहीं रहता, ये उस एक्सप्रेशन से भी पहले के सेल्स हैं. सो जब उनमें ये नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के सेल्स हैं, तो किसी भी बॉडी में डाले जा सकते हैं जहाँ की ये इम्यून सिस्टम को इवेड कर सकते हैं उनको, वहाँ पे वो मतलब वहाँ पे कोई इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस नहीं करेंगे. नो इम्यून रिस्पॉन्स इन सम इंडिविजुअल्स आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन. तो ट्रांसप्लांटेशन हमने कर भी दिया फिर भी कोई रिजेक्शन या कोई इम्यून सिस्टम ने उसको रिकग्नाइज ही नहीं किया एज फॉरेन, क्योंकि उस पर एंटीजेंस नहीं है, सोर्स का एंटीजन नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर सोर्स का है. कोई भी एंटीजन ना होने की वजह से उनको एज फॉरेन ट्रीट करके उनको रिजेक्ट करने का कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता है. Secretions from such cells can inhibit inflammation and proliferation of T and B cells. वही बात कि इम्यून सेल्स में की वजह से जहाँ पे जो भी इन्फ्लेमेशन की प्रॉपर्टी है वो भी नहीं होगी, कोई डैमेज नहीं होगा जहाँ पे ये इनको ट्रांसप्लांट किया जाएगा, और अल्टीमेटली दे विल नॉट बी इंड्यूसिंग proliferation of T and B cells. Both cell types have similar beneficial effects. अब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लेंगे तो फ़ायदे नहीं है ऐसा नहीं है, वो भी एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के हैं, स्टिल टेराटोमा बना रहे हैं और उनके ग्रो करने में थोड़ा फीडर लेयर, जिसकी फीडर लेयर से अपने प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका कंटामिनेशन वगैरह आ जाता है, तो वो सब बच जाता है. फीडर लेयर अगर यूज़ ही ना करनी पड़े, जो सेल हम पेट्री डिश में डालें खाली वही इकलौता अकेला अपना अपनी लीनेजेस को ग्रो करे और उनमें डिफ्रेंशिएट हो या प्रोलिफरेट करे तो बेटर होता है. सो AESC cells have no dangerous side effects. तो कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स इसमें फीडर लेयर की वजह से आ रहे हैं वो भी बच जाते हैं, और इम्यून सिस्टम को चूँकि ये प्रोवोक कर सकता है और ये नहीं कर सकता है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो कि इसमें नहीं है. इसलिए ये एपिथेलियल सेल्स के एपिथेलिया के जो स्टेम सेल्स हैं उनको बेटर माना गया है ट्रांसप्लांटेशन के टर्म्स में, एंड दे कैन बी यूज्ड इन रीजेनरेटिव मेडिसिन. अब इनको आइसोलेट कैसे करेंगे, अभी हमने स्ट्रक्चर देख लिया है. ए सेल्स आइसोलेशन एंड डिफरेंशिएशन मेथड आसान सा कुछ स्टेप्स का मेथड है. एमनियोटिक मेम्ब्रेन कैन बी पील्ड अवे फ्रॉम कोरियन, उसको अलग किया जा सकता है, और एमनियोटिक मेम्ब्रेन देन बिकम्स द सोर्स ऑफ AE और AM.
amniotic epithelium and amniotic mesenchymal cells. Stem cells. Amnion membrane is washed 3 times. After peeling from other part, it is washed 3 times to eliminate blood cells. Apply trypsin to free AE cells. ब्लड सेल्स जो है उनको हटा दिया, फिर जो उससे चिपके हुए सेल्स होते हैं वो एई सेल्स होते हैं और एएम भी होते हैं, लेकिन ट्रिप्सिन से एई सेल्स फ्री हो जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट और कनेक्टिव टिश्यू से अलग हो जाते हैं। एएम फाइब्रोब्लास्ट और कनेक्टिव टिश्यू से अलग करने के लिए उनको ट्रिप्सिन से ट्रीट किया जाता है, देन उसको सेंट्रीफ्यूज करके पैलेट कर लिया जाता है और फिर से सस्पेंड करके उनको स्टैंडर्ड बफर या स्टैंडर्ड मीडियम में उनको रखा जा सकता है। यहाँ पे अब आपको 80 to 300 मिलियन सेल्स मिलते हैं फ्रॉम एक 1 प्लेसेंटा, और ये इनमें ग्रोथ बहुत फास्ट पाई जाती है। दिस कैन बी क्रायो प्रिजर्व फॉर लॉन्ग। इनको फिर अगर प्रिजर्व कर जाए तो विदाउट एनी डैमेज these can be preserved for long time. Epithelial growth factor may be used to promote growth and differentiation in vitro. AE cells could be successfully differentiated into, अब ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिन सोर्सेज से हमने ये आपका लेक्चर बनाया, उन्होंने हिपेटोसाइट लाइक सेल्स बनाए डिफरेंशिएट करके, एंड ये हिपेटोसाइट लाइक सेल्स क्यों कहलाए, बिकॉज दे आर एक्सप्रेसिंग हिपेटोसाइट मार्कर जीन्स। एंड ये कैसे हुआ, ये इसके लिए ह्यूमन एई सेल्स को माइस लिवर में ट्रांसप्लांट किया गया और देखा गया कि उनका वेट क्या है, तो दे एक्सहिबिटेड ह्यूमन हिपेटिक जीन एक्सप्रेशन और ह्यूमन जीन्स इन माइस लिवर, क्योंकि वहाँ पे साइटोक्रोम्स थे और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन मिला वहाँ पे, जो कि ये लिवर का मार्कर है ह्यूमन बीइंग्स में। सो we can say that these are transplanted cells were able to make hepatocyte like cells. So other applications जो कि स्टडीज में देखे गए, स्किन ट्रांसप्लांटेशन किया करके देखा गया, ऑकुलर डिजीजेस में कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, particularly as a scaffold to promote epithelialization, epithelial layer बनाने के लिए उनको स्कैफोल्ड के फॉर्म में यूज़ किया गया कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन में। फिर ये भी स्टडी की गई, और स्टडी एप्लीकेशंस के लिए क्या की गई, इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल एमनियन यूजिंग ह्यूमन AE cells on a mechanically enhanced collagen scaffold containing encapsulated human and amniotic stromal fibroblast। तो ये मीडियम में ये सब बना के स्कैफोल्ड बना के कोलेजन का, और अगर ये सेल्स डाले जाए तो आर्टिफिशियल एमनियन बनाया जा सकता है। इसके अलावा ये सारी स्टडीज़ हम आपको बता रहे हैं कि इसके ऊपर क्या स्टडीज़ हुई हैं। AE cells have been shown to promote healing and regeneration in animal models of diseases. And हम मॉडल्स क्या होते हैं कि एनिमल्स जो ह्यूमन बीइंग्स लाइक डिजीजेस शो कर सकते हैं, डिजीज सिम्टम शो कर सकते हैं, उनकी पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी उस तरह की हमसे मिलती जुलती हो, जो कि ज़्यादातर माइस में, मंकी में, इनमें मिल जाती है। तो उस ऐसे एनिमल्स मॉडल्स कहलाते हैं, डिजीज़ मॉडल्स कहलाते हैं। उनमें डिजीज़ भी इंड्यूस की जाती है, उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसका ट्रीटमेंट का कोर्स फॉलो किया जा सकता है। तो ऐसे एनिमल्स मॉडल एनिमल्स होते हैं, तो वहाँ पे पहले डिजीज़ इंड्यूस की जाती है, फिर हीलिंग के लिए ये सेल्स फॉर एग्जांपल दिए गए, उससे फिर देखा गया कि जो भी डैमेज हुआ था डिजीज़ से, उसमें नए सेल्स आ गए और नए सेल्स से रीजनरेशन हो गया,
और डिजीज को फाइट करने में हेल्प मिली. So in lung injury, in sheep and mouse models, these cells improved lung function and reduced pulmonary fibrosis. तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो कि एनिमल्स में देखी गई, उनमें एप्लीकेशंस देखे गए. So we can conclude that AE cells from discarded placenta may be abundant. एक तो इनका सोर्स बहुत है, हर चाइल्ड बर्थ के साथ ये मिल सकता है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, नोबडी रिक्वायर्स दिस प्लेसेंटा आफ्टर चाइल्ड बर्थ. सो कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है अगर उसको ले लिया जाए, उसमें से ब्लड कलेक्ट कर लिया जाए. सेफ है, क्योंकि इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज नहीं शो करता है. नॉन इम्यूनोजेनिक एंड सिक्रीट एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स. AE transplantation can be alternative to therapy of orthotropic liver transplantation. तो लिवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है. इनका क्यों किया जा सकता है? इनका खुद का साइज जो है, सेल साइज जो है, दिस इज स्मॉलर देन हिपेटोसाइट्स, विच इज़ अ टेक्निकल एडवांटेज फॉर देयर इंजेक्शन एंड एनग्राफ्टमेंट. तो ट्रांसप्लांटेशन की कोशिश की जा सकती है, और एक बार ट्रांसप्लांटेशन कर दिया और वो वहाँ पे बिना किसी इम्यून रिस्पॉन्स के, बिना किसी रिजेक्शन के अगर ग्रो कर गया और नए सेल्स उसने बना लिए, तो लिवर की डिजीज़ को ओवरकम किया जा सकता है. एंड दिस विल हेल्प टू अवॉइड पेशेंट डेथ ड्यू टू इनसफिशिएंट नंबर ऑफ अवेलेबल लिवर. लिवर ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करें तो इतने सफिशिएंट लिवर अवेलेबल नहीं है, और लॉन्ग ऑर्गन वेट टाइम इज देयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए. और करेंटली नाइमन पिग डिजीज़, जो कि फैटी एसिड फैट रिलेटेड डिजीज़ है, acute liver failure, liver fibrosis, models and their correction by transplantation of human AE-SC are motivating. मतलब कि इन डिजीज़ में, इस टाइप की डिजीज़ में इनका यूज़, इनकी जो स्टडी की गई है वो मोटिवेट करने वाली है कि वो वहाँ पे फ़ायदा करते हैं. They can be stored in cell banks and so encourage the future use in liver diseases by transplantation. इतने सारे इनके uses हैं. For making this lecture, I have seen these many references and read their articles. So this is all for today. I will be taking up other cell types present in this cord blood, and we will see uh, which one is best, or it is possible that one cell type is useful for one disease, and other cell type is required for the other cell type, and it is important that we should be able to keep these things in blood bank or cord bank, so that it can be used later as and when either the baby or their mother, parents, siblings, grandparents, anybody is sick and they need help. Then through regenerative medicine, source is there, and these can be utilized to help mankind. So this is all for today. If you like my lecture, please like it, subscribe it, and share it too. Thank you.